Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to begin our new unit. This is the fifth unit of science for class 8th, and the title of the unit is Chemical Reactions. So let's see what topics are we going to study in this unit. The first topic which we will study is chemical reactions and their examples. The second would be rearrangement of atoms in chemical reactions, and then we will study law of conservation of mass. So let's study the formal definition of a chemical reaction. The change of one or more substances into other substances having different composition and properties is called a chemical reaction. बच्चों, chemical reaction क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस चेंज होते हैं किसी और सब्सटेंस में, और जो नया सब्सटेंस होता है उसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज फ़र्क होती हैं पहले वाले सब्सटेंस से, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन combine together to make carbon dioxide. On the left hand side we write down reactants, on the right hand side we write down products. Hydrogen के दो atoms plus oxygen के दो atoms, they combine together to make H2O. H2O is the chemical formula for water, hydrogen peroxide, water. In a chemical reaction, the substances which react together are called reactants, whereas the new substances formed are called products. जो substances react करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, उनको reactant कहते हैं. वो हम equation की यानी इस arrow की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है जो उसमें से बन जाता है रिजल्ट के तौर पे, वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, एंड दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट. So let's begin reading the lesson. This is page 55 of your book, science book, and we are following KPK textbook board. You know that pure substances are of two types, elements and compounds. आपको मालूम है कि substances, pure substances दो तरह के होते हैं, elements and compounds. An element is the simplest and pure form of matter and contains the same kind of atoms, while a compound is formed by the chemical combination of two or more elements. Element जो है वो pure और simplest form of matter है, और उसमें तमाम एटम्स एक ही तरह के होते हैं, जबकि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जबकि जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बनता है. In this unit you will study about chemical reactions, chemical equations and its balancing. इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बारे में पढ़ेंगे. एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस. कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड फाइनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So the first topic is chemical reactions and their examples. The process of formation or breaking of chemical compound is called a chemical reaction. Chemical compound के बनने या टूटने के अमल को chemical reaction कहते हैं. During a chemical reaction, new substances are formed which are different from the starting substances. केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि उन सब्सटेंसेस से फ़र्क होते हैं जिन्होंने केमिकल रिएक्शन शुरू किया था. यानी केमिकल रिएक्शन के शुरू वाले सब्सटेंसेस उसके एंड प्रोडक्ट से फ़र्क होने चाहिए. Those substances which combined with each other are called reactants, while those substances which are produced as a result of chemical reaction are called products. ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो मिलकर कोई नए प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं. जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं. Chemical reactions are not only involved in various biological processes,
केमिकल रिएक्शंस ना सिर्फ बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं जैसा कि डाइजेशन, but they are also needed for the manufacturing of different synthetic goods like glass, cement, fertilizers, medicines and plastics etc. अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी अपनी बॉडी में डाइजेशन है, इसके अलावा रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में खुराक बनने का अमल है, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं. बर्निंग है, इस किस्म के और बहुत से प्रोसेसेस हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं. लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि उससे हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं. वो जानबूझ के किए जाते हैं इंटेंशनली, ताकि उनसे मुख्तलिफ चीज़ें बने. मसलन ग्लास, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स यानी खाद, दवाइयाँ और प्लास्टिक वगैरह बनाने, ये सब चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं? केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस: लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसको आम जुबान में क्विक लाइम कहा जाता है, वो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है. Plants prepare their food glucose by the reaction of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड बनाते हैं जो कि ग्लूकोज होती है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रेजेंस में, और सनलाइट का होना भी उस वक्त ज़रूरी होता है. यानी बुनियादी तौर पर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट चाहिए होती है और फिर ये अपनी फूड बना सकते हैं. ये इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूला या केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसके साथ आपको 6 लिखा नजर आ रहा है. 6 का मतलब ये है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. H2O इज वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. जब इनके साथ सनलाइट की मौजूदगी में ये C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है और ग्लूकोज बनता है. यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है कि टेक आयरन फिलिंग्स एंड पाउडर्ड सल्फर इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व द चेंजेस. व्हाई डू सल्फर एंड आयरन लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? आयरन फिलिंग्स और पाउडर्ड सल्फर को अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में हीट करें, उनको गर्म करें, तो फिर आप चेंजेस ऑब्जर्व कीजिए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि सल्फर और आयरन दोनों अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लूज कर देंगे और आयरन सल्फेट बना देंगे. तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन और इसमें आयरन और सल्फर दोनों अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं और नया सब्सटेंस बना देते हैं. So this was the first topic of this unit. In the next video we will study the next topic, which is rearrangement of atoms in a chemical reaction. If you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel so that you get a notification whenever our new video is uploaded.